we had discussed about exalted double-A के बारे में बात करा था. We didn't do anything else. I just started with sun, but we didn't go ahead with sun. If I'm not wrong, right? Correct me if I'm wrong. Okay. तो मैं रिवाइज नहीं करा रहा, थोड़ा सा फिर लंबा खिंच जाएगा. Sun is exalted in Aries. Sun's own sign is Leo. This is clear. इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं अभी तक, right? Sun is exalted in Aries and Sun is own sign is Leo. हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. We had given a lot of time to it. तो हमारे में हमेशा बोला गया Sun अब exalted का मतलब क्या हुआ? It's very very well placed out there. कुंडली में सूर्य को दो जगह, there are two houses typically where Sun is not treated very very well. That is the 12th house and that is the 7th house. It is not created very very well. And other than that, जो अपनी अपनी जो दुश्मन की राशियां जिसको बोलते हैं, Sun is also not treated very very well out there. When we say दुश्मन राशियां, तो आप इसको मान के चलिएगा, in Saturn's राशि, Sun is a bit weak. Any house being out there, but वो कारक तत्व जब मैं और उसको अभी डिस्कस करूंगा राशियों को साथ साथ में, you will understand what I'm trying to say. पर हमेशा बोला गया सन के दुश्मन, सन के दोस्त कौन है? सन, मून, जुपिटर, Mars are at one side. Both all of them are a friend circle, and other rest of them are at a friend circle. Ketu being at a very very neutral. Rest which are all left as Rahu, Mercury, Venus, and Saturn are at one area. Especially out of that, Sun and Saturn are the most malefics considered to each other. मैं एक last time भी I was trying to tell, I'm not so sure did we discuss about the story of Surya or not? We didn't discuss, right? तो हम जब सन की बात करते हैं तो सन की टिपिकली बोली गई कि तीन रानियां, there were three queens. Sun was married to three queens. शरण्या, रज्ञई एंड प्रभा. आप लोग प्रभा को अलग अलग नाम से जानते हैं. उसमें से शरण्या was the mother of सन के जो बच्चे आगे बोल रहा हूँ, सत्यव्रत, और ट्विंस हुए थे यम और यमी. Then शरण्या gave birth to अश्विन कुमार, जिनको मेडिसिन हीलर बोला गया, फिजिशियंस हमारे में जो बोला गया, हाफ हॉर्समैन और हाफ देवता बोला गया, वो रहा. फिर उसके बाद शरण्या had a major problem what कि भाई she was not able to take up the heat of Surya, so she cloned herself when we spoke about last time, and she that clone was named as Chaya being out there. And out of Chaya, there were two sons. One was Saranini Manu, and the other was Shani. There were two daughters also, named Tapti and Vishti. All of them were big out there. तो उनमें से सूर्य के बच्चों में से दो, one was Shani and another was Yam. Shani we know कर्मफल दाता, Saturn, and Yam we know as the Lord of Death. So this is how that sun's. This is the mythology related to the Surya. What is happening? This is the mythology related to the Surya in typical. If you ever see how sun depicted in astrology, in Vedic astrology, it is depicted a male riding a chariot with 7 horses. Right? आप लोगों ने कभी देखा होगा सूर्य को, तो it is always said कि सूर्य chariot पे और आगे 7 सूरज के 7 घोड़े बोला जाता है. If you ever understand that, so it is always said. तो सूरज के 7 घोड़े हैं, सन्स 7 हॉर्सेस आर द विब्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू. जो हमारी विब्योर लाइट निकलती है उसको हम लोग सूरज के 7 घोड़े बोला जाता है. So it is denoted by that. So where does the vibyur come from? Vibyur's light come from where? Sun itself. It is the main source of Surya. You will understand in south right now, you can understand that monsoon just started yesterday or today, if I'm not wrong. So after every there's a rainbow coming out there, right? But after that rainbow, there are 7 colors depicting out there. Everywhere we see that rainbow. That 7 colors are typically associated with Surya, Sun, if we typically say. Sun as a god is seen with 2 hands holding a lotus in each hand, and in the form of 4 hands, it's holding lotus, shankh, chakra, and mace in respective hands. ऐसे ऐसे रखते हैं वो. Sun is also known as the bravery planet. जब हम सूर्य की बात करते हैं, when Surya is very very strong in somebody's horoscope, so intelligence is seen out there, the authority is seen out there, very very strong. What do you mean by very very strong? If I give you an instance, so Sun in which Rashis, especially if you understand Mesh or Leo Rashi, Sun is very very strong, right?
And अभी के लिए इतना समझो कि sun is very very strong in Mesh and Leo Rashi. It creates very very strongness being out there. So it says it gives intelligence, it gives perception, strength of will and character, endurance, stamina, vitality, positive spirit, direction, courage, convictions, confidence, leaderships, independence, straightforwardness देता है. That is typically sun. Sun को मैंने आपको स्पेशली बोला, sun is not that very great in which राशि? Tula Rashi, Libra, Sun is debilitated, right? You remember this? And especially with that, Sun in the 12th or the 7th house, it's not that very, very greatly connected. तो उसमें बोला गया लैक ऑफ इंटेलिजेंस बोला गया, पुअर परसेप्शन बोला गया, वीक विल पावर बोला गया, कैरेक्टर से प्रॉब्लमैटिक बोला गया, लैक ऑफ इंडोरेंस बोला गया, लो वाइटैलिटी बोला गया, डिपेंडेंसी बोला गया, डिसऑनेस्टी बोला गया टुवर्ड्स द सूर्य बीइंग आउट देयर. When sun is malefically disposited, when we say typically understanding in the 6th house, 8th house, or very, very malefic in the 3rd house itself, it gives pride, arrogance being out there. Surya jab deta hai, pride, arrogance, साथ में बहुत ज़्यादा देता है, right? Whenever, if you understand sun as a planet, if you typically understand, what all does it in that fatherly area? It's the father-like figures. It is the authority. It is the person with authority being out there. So, for example, somebody, you go to some sarkari daftar in some government organization, तो आपको किसी क्या बोलते हैं, ना किसी बाबू से या फिर किसी strong आदमी से you have to meet that typically sarkari kind of a person, the head, the authority of the person, that is sun. Typically सूर्य बोला जाता है उसको. Your atma, soul, self, leadership, power, glory, fame, honor, respect, this is all associated with what? Surya. Make your notes later upon, not an issue. Just try to listen right now. That will be very important for people, right? Moon, Mars, Jupiter are considered friends to Surya. Mercury is considered neutral. ठीक ठाक है, neutral है. दान को अच्छा ना तो बुरा. Shani, Rahu, Ketu, Shukra are considered the typically enemy. Out of them, Shani is the most enemical planet, which is considered towards Sun. I don't know why my eyes are getting okay. Am I able to see? Yes. Okay. Any questions as of now for Surya? No? Okay. So suns, when we talk about transit of sun, understand what is the literal meaning of transit? Transit means, Nishaji, because you are the only one whose camera is on right now, I'll try to focus you first and then I'll tell it to everybody. Transit means sun की movement है. Sun moves from one Rashi to another Rashi. वो typically याद है मैंने बोला था 30 degrees of one house, then it moves. So sun typically moves every day. Sun moves one degree. हर planet का एक वो लिख लो, transit लिख लो. From one Rashi to another Rashi, from one Rashi to another Rashi. Surya 1 month. Moon 2.5 days. Mars 45 days approximately. Mercury 28 days approximately. Jupiter 1 year. Shani 2.5 years. Rahu Ketu 1.5 years. I'll repeat. Sun 1 month. Moon 2.5 days. Mars 45 days. Mercury and Venus mota mota is 28 days to 30 days. Mota mota with Sun itself. Jupiter 1 year. Saturn 2.5 years. Rahu Ketu 1.5 years each. This is the transit time. What is transit time for a planet from moving from one Rashi? Venus and Mercury, I told you, 28 to 35 days. Mota mota. Because those are the planets we'll understand later, which are very very close to Sun all the time. बहुत पास रहते हैं वो दोनों के दोनों. तो वो मोटा मोटा they start from 28 to 35 days, depending. उनकी वो रहता है. बाकी सबका मोटा मोटा still ही है. इन दोनों का थोड़ा बस 10 plus minus 1 week max to max up down रहता है. और कुछ भी. So
again explaining what does a transit means. Transit means from one Rashi, from Aries Rashi to Taurus to Gemini, Gemini to Cancer, right? House nahi bol raha. Somebody gave me homework. The number was not saved. So what they was that female was trying to tell me Rashis, but she had written houses. So she made a blunder being out there. So I don't remember also. I'll check. I tried to correct her. She corrected it later. So I'll go back to the basics first class. Rashis are movable, houses are fixed. Never ever forget that. When I say first house, that means first house. We spoke last time also about this, right? You remember? We spoke a total time. हम लोगों ने इस पर डिस्कशन ही करा था कि राशिज मूव कर सकती हैं. इस चक्कर में वो कन्या लगन, कर्क लगना, and the लगन horoscopes were changing. If you people remember, right? There was a basic example where we were talking about the exaltation and debilitation of a planet, right? Okay. So in Vastu or in Jyotish also, Sun is considered most auspicious in the east direction. East direction is denoted with Surya. The metal which is donated with Surya, metal means that Chandi wala, gold is the one which is donated with Surya. The gemstone which is with Surya, that is ruby. The day which is considered with Surya is Sunday. The color which is connected with Surya is hot. Color is orange. The temperament is hot. Temperament means अगर हम हर चीज के तत्व बोलते हैं ना, Tattva means the elementation of it out there. So for that, hotness is created with sun. It's very, very obvious why I'm talking about that, right? It's a fireball towards it, right? In ruling body parts, heart, head, hair, bones, eyes, and overall health is connected with the Surya being out there. Jupiter, Moon, Mars, I told you about Venus, Saturn, Rahu, Ketu as enemy, neutral is the Mercury being out there. Own sign is the Leo own sign, exaltation is the Aries, and the debilitation is Libra, own sign Mool Trikon is what? Leo. Surya's Mahadasha is for 6 years. The relationship in our horoscope, whenever we Surya we see as a from the Surya sun itself. When we talk about professionalism, professions which sun donates is government sector jobs, politicians, physicians, medicines, wheat, gold, copper, and ruby related items. ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीजें सूर्य के साथ connect करके बात करती हैं. So now understanding is you people remember houses, first house, second house, and their attributes. I hope that those are clear, right? So when sun is in the first house, right? Now I'm again saying don't get confused. I'm from अभी किसी को homework के चक्कर में बोल रहा हूँ मैं. It was I thought that person was confused. That's the reason. Can you see the screen? Somebody can unmute and tell me. Yes. Yes, sir. Okay. Now I'm talking about when sun is in the first house, right? So first house, Surya in astrology makes one very, very proud attribute बोला गया उसके लिए. मैं अभी इसको screen को हटा देता हूँ. To create some, you will be able to see me very, very well. So sun in the first house makes one very, very proud, very, very ego, someone who takes charge and takes no for an answer. मतलब ना नहीं सुन सकता वो आदमी. He will always create those problematic areas. Sun in the first house in Vedic is said to give good health. It's said upon the sign also which is in the Surya itself. So now for an example, it is said it is in the Tula Rashi in the first house. So it's debilitated. You remember? I remember Tula Rashi debilitated. But तब भी first house में तो betterment ही है. तबीयत में problem होगा, but not that very, very negative aspects. तो तुला में जैसे आ जाता है Venus की राशि आती है, तो तुला, sun here is debilitated, but one will get strength and support via people. Tula Rashi is people itself, right? Support area. Not individually that person will be very, very weak kind of it. I'm telling about first house and Tula Rashi, right? The person may need people's validation when Surya is in the first house. Tula Lagna, make a horoscope Tula Lagna and the first house Surya being out there, right? कोई confusion तो नहीं है ना इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए. हाँ. So I just put it out because Tula came out there, it's being out. That's the reason.
तो he would be requiring people's validation in that point. He would be requiring people's opinion for that matters. बिकॉज वो खुद में अथॉरिटी नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? फर्स्ट हाउस में बहुत स्ट्रांग है, बट उसको चाहिए क्या? कहीं ना कहीं वीकनेस तो है ना, बिकॉज उसका जो राशि है, विच राशि इज इनटू दैट, जिसके घर के किराए पे है, दैट्स नॉट वेरी वेरी स्ट्रांग आउट देयर, राइट? मैनिपुलेटिव हो सकता है वो आदमी. तुला राशि फर्स्ट हाउस हार्श रह सकता है, मैनिपुलेटिव रह सकता है, जेलिसी रह सकती है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक ठाक रहती है लेटर एज में, नॉट एन इशू. दिस वाज जस्ट अबाउट Surya in the first house in the Tula Rashi. Now I'll just talk about Surya in the first house. Now I'll not mix that, right? Okay. The first house is what body, personality, attributes of the person out there, right? So first house में बोला गया self-centered आदमी for sun is said to be out there. Progressive बोला गया, good fortune बोला गया, leadership quality बोला गया. वो व्यक्ति किसी के order नहीं ले सकता. He needs to be that bossy kind of a person. For an example is, you meet somebody Surya Lagna, so you can understand that person's attribute being out there. You can directly say you are a bit disciplined kind of. अब वो आर्मी का ब्रिगेडियर है कि he cannot take a no, as I said, right? So what he has said, he needs that and he wants to pursue with it. He won't take a no for anything. He won't buy for no. He will always require his own. बोल दिया ना, तो ठीक है, ऐसे ही होने का. Don't worry about it. That kind of a person, right? शास्त्र बोलता है, so now this can vary from person to person, but शास्त्र जो बोल रहा है, I'm just telling you that tall height बोला गया, pleasant eyes बोला गया, good nose बोला गया, white forehead बोला गया, सूर्य लगन में जब होता है, strong and healthy kind of a person रहता है, that person can have gastric related issues, that is what is in the शास्त्र, right? सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा रहता है उस आदमी के अंदर. बर्निंग सेंसेशन अंकित जी अगर आप समझे तो वो बंदा ज्यादा खा लेता है तो पता नहीं यार छाती जल रही है यार, इनो दे दो, आई नीड सम, वो फिजी चाहिए होता है, दैट काइंड ऑफ एरिया. दैट इज द सूर्य इन लग्न व्हेन सेवर sun is very very strong with that person. This is again an attribute to that person, right? Why? Sun is a bileless constituency. Bileless means पित्त. बात पित्त कफ बोलते हैं ना, तो पित्त जब आता है वो सूर्य का आता है. So it is that being out there. Ayurveda suggests one thing. I'm not so sure if people understand Ayurveda well, but that in general I'm talking about. Whosoever is a very strong Surya in the horoscope, Sun in the first house, 10th house, Surya strong in the 10th house, that person can have उसको ना पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकता है. थोड़ा सा गर्मी वाला जैसे कहते हैं ना, पित्त क्या, he will always have that hot kind of area. ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, that kind of area. पित्त रिलेटेड बहुत ज्यादा वो रहता है उस व्यक्ति, बात पित्त का, right? You understand, right? So the only remedy what Nishaji did right now is the only remedy is to drink a lot of water. That is the only remedy for Surya whenever is very very strong. Because fiery element को शांत के लिए आयुर्वेद यही बोलता है कि that is the remedy, right? A person with Surya first house, उसको वैसा आदमी होगा, प्रॉपर प्रूफ के साथ काम चाहिए उसको. सेल्फ सेंटर्ड आदमी, कॉन्फिडेंट आदमी को प्रॉपर प्रूफ चाहिए हर चीज के लिए. इंटेलिजेंट बोला गया, उसको बोला गया सक्सेसफुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बस उसको खाली एक चीज बोला गया, ओवर डोमिनेटिंग ना हो वो व्यक्ति, दैट इज ओके, राइट? उस व्यक्ति को ये बोला गया गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लमैटिक एरिया बोला गया, गैस्ट्रिक एरिया हो सकता है. और अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में बोला गया कि उस को अपोजिट सेक्स अपने वाइफ है तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ के प्रति इनको थोड़ा सा इजी रहना चाहिए. डोंट बी ओवर, क्या बोलेंगे इसको, ओवर डोमिनेंस नहीं करना चाहिए. इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज सूर्य लगना, अंडरस्टैंड एज सिंपल एज इट, वन वर्ड, सूर्य लगना ब्रिगेडियर, सुबह 6 बजे उठना तो उठना है. ही विल ऑलवेज टॉक अबाउट द घड़ी. इफ दैट पर्सन इज नॉट लाइक दैट, तो अंडरस्टैंड दैट सन इज वेरी वेरी वीक इन हिज हॉरोस्कोप. होता ना, और अंकित भाई आप समझेंगे इस बात को कि एक व्यक्ति को हर चीज मिला हुआ बट वो यूटिलाइज नहीं. पूरे लगना नेचुरल टेंडेंसी इज वेरी वेरी स्ट्रांग. ही हैज टू बी डिसिप्लिन. दैट्स द रीजन दैट सन इज टू बी स्ट्रांग. एक व्यक्ति बोलता है भाई मैं तो बड़ा लेजी हूं, मैं तो नहीं काम कर पाता, सर सिग्नल चला गया आपका शायद.
Audible? I don't know, there's some network issues. I'm so sorry about it. Yes, sir. Uh-huh. What was the last word you people heard? सर सूर्य के एट्रीब्यूट्स बता सूर्य लग्न में बोला था वाइफ के साथ में या हस्बैंड के साथ में थोड़ा सा इजी रहना चाहिए. आई थिंक सो दैट वाज द लास्ट व्हाट यू पीपल heard, right? यस Yeah, so now Surya coming in the second house, उसको क्या बोला गया? Second house represents pride, ego driven nature because of the family areas being out there. तो सेकंड हाउस में बोला गया उस व्यक्ति के लिए स्ट्रॉन्ग अच्छा रहता है कि मतलब वो पैसे वाला उसमें रह गया, वेल्थ एंड फॉर्चुनेट बोला गया. वो व्यक्ति जब वो बात करता है सेकंड हाउस जो स्पीच अगेन ही विल बी लॉजिकल. सेकंड हाउस सूर्य इट विल बी अ वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ अ पर्सन. उसमें कोई डाउट नहीं है कहीं पर भी. उस व्यक्ति को स्पेंडर ऑफ मनी बोला गया. सेकंड हाउस का सूर्य जब भी आया, सेकंड हाउस को सूर्य आया तो स्पेंडर ऑफ मनी बोला गया. इट इज ऑलवेज सेड कि अगर वो व्यक्ति कहीं किसी के लिए एम्प्लॉय रहता है, सो ना सपोज इट इज सेड टिपिकली बीइंग अ वेरी स्ट्रांग मनी राइट अवे, इफ इज एन एम्प्लॉय सो ही वुड बी हाई हाई इन्वेस्ट, मतलब वो हाई रिटर्न इन एम्प्लॉय, मतलब ही वुड बी अ गुड एसेट. Second house Surya, suppose for example you want to hire somebody who has a second house Surya, it's a very very good asset for that. Not Rashi's right now, but in general. तो Surya second house में money wise, family wise, high status position के लिए Surya second house को बोला गया it is considered good for that matters कि अगर second house को Surya है तो एक family perspective के वे में बहुत बढ़िया है, generous आदमी है, warm nature आदमी है, पैसा अच्छा खर्च करता है, costly material items पे खर्च करता है वो व्यक्ति. डीप सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा रहती है उस आदमी को. इट इज द गुड एट्रीब्यूट बीइंग आउट देयर सेकंड हाउस में. वैसे जो थर्ड हाउस में आता है सूर्य, दैट पर्सन इज सेड टू बी अ कन्वेंशनल स्पीकर, राइट. अचीवमेंट मतलब अपनी वो उसकी जो रहेगी, अपनी वक्ता बहुत अच्छा आदमी निकल के आता है. अपनी कम्युनिकेशन वाइज दैट पर्सन इज कंसीडर्ड वेरी वेरी वेल कि अपना वक्ता बहुत अच्छा, मतलब अपनी बात रखने में सक्षमता, वक्ता इस मामले में बहुत बढ़िया रहता है वो आदमी. इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट. I don't know why my system is also getting hanged. You people are able to see me, right? Yes. I don't know, some net issue today. वो व्यक्ति थर्ड हाउस में he has a good connection with their younger siblings and relatives की तरफ पे, co-workers की तरफ पे, neighborhood की तरफ पे वो ठीक ठाक रहता है. Fortunate के लिए बोला गया, सक्सेसफुल इन लिटिगेशन बोला गया, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर बोली गई, अथॉरिटेटिव पर्सन बोला गया. whenever Surya is in the third house in general, that native is devoted towards a lot of wisdom and beliefs of sharing things. वो in the fourth house स्ट्रॉन्ग हेडेड रहता है अपनी फैमिली की तरफ पे, डोमिनेंस की तरफ पे, फैमिली की तरफ पे, मदर की तरफ पे, घर की तरफ पे अपना होल्ड अच्छा रखता है. बात इसको वैसे समझो, होल्ड अच्छा रखता है फोर्थ हाउस की तरफ पे. घर वालों का सोशली वेलफेयरली स्टेटस में हमेशा मेंटेन करके चलने वाला आदमी रहता है. इट इज नॉट क्रिएटेड अ वेरी मेजरली प्रॉब्लम. इन लोगों को फोर्थ हाउस में सूर्य को थोड़ी सी लेटर स्टेज में सक्सेस मिलता है लाइफ में सूर्य को लेने के बाद. बट एज सुन एज at the age of 36 they see the typically growth and welfare in their life. तो स्ट्रांगनेस रहता है उनके साथ में फोर्थ हाउस सूर्य के साथ. as soon as fifth house sun comes out there, क्रिएटिविटी बोला गया, एकेडमिकली बोला गया, जॉयफुलनेस बोला गया, स्पेक्युलेशन बिजनेस के लिए बोला गया, मैग्नीफाइंग बोला गया. एवरीथिंग को मैग्नीफाइंग, इल्यूजन क्रिएटिंग, इल्यूमिनेशन के अंदर काम करता है. तो इट इज कंसीडर्ड वेरी वेरी गुड फॉर दैट मैटर्स. वो व्यक्ति को क्रिएटिविटी, फिलोसफी, एंशिएंट टेक्स्ट की तरफ पे हो गया, क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की तरफ पे हो गया. दैट पर्सन इज वेरी वेरी गुड. अगर सूर्य फिफ्थ हाउस में बोला गया तो एक व्यक्ति ठीक ठाक है पढ़ाई में, मतलब आई एम नॉट सेइंग अ वेरी वेरी स्ट्रांग गाइड डेवलप, अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अटेंशन पढ़ाई में रहता है, जैसे मर्जी हो तो हाउस को रहेगा, राइट. ईगो बहुत ज्यादा हाई बोला गया, जैसे सूर्य पंचम फिफ्थ हाउस का आता है तो ईगो
is being out there, but that person will always love what mantras, love in chanting का बहुत strong रहता है. बोला कि सूर्य 5th हाउस में फादर के साथ बॉन्ड उस व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है, बिजनेस एबिलिटी उस व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है 5th हाउस में. जैसे सूर्य 6th हाउस में आता है, वो 6th हाउस किस चीज का मैंने बताया था, कॉन्फ्लिक्ट्स का बताया था, डिजीजेस का बताया था, रोग ऋण रिपू बोला था, एनिमेटिकल एरियाज, राइट. तो वहां पर जैसे ही आता है वो व्यक्ति सूर्य बीइंग आउट देयर, इट सॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट्स, इट विन्स ओवर द लिटिगेशंस, इट विन्स ओवर द एनिमीज. बेसिकली अपने आप को स्ट्रांगनेस है. 6th हाउस में बहुत ही कम प्लैनेट होते हैं जो आउट परफॉर्म कर पाते हैं, तो सूर्य इज वन ऑफ देम, मंगल इज अनदर एरिया. Rahu being out of the 6th house are considered, these are some planets which are considered good in the 6th house, right? तो स्ट्रांगनेस बोला गया, अच्छा बोला गया कि मतलब अपनी बात रखने में सक्षम होता है. 6th हाउस इज बहुत कॉम्पिटिटिव एरिया, कट थ्रोट किल कंपटीशन है 6th हाउस. अपनी बात रखना, अपनी वो कहते हैं ना, क्या बोलो सर्पस, तो देयर इज अ कंपटीशन between two people. Surya 6th house, that person will be able to win over that competition, let it be by the judgment or let it be by अपनी खुद की बहसबाजी करके. तो उस व्यक्ति के लिए स्ट्रांगनेस is considered auspicious being out there, right? As soon as Surya comes in the 7th house, 7th house sun not that very great. अभी कैसे से आपने पूछ किसने, सुमन जी ने पूछा था ना कि सूर्य 7th हाउस में आया, सूर्य 7th हाउस में वेस्टर्न एरिया बोला गया, द सन गोज डाउन, ऐसे ही वो 7th हाउस डाउन साइड का बोला गया, तो इट्स नॉट दैट वेरी ग्रेट. Surya 7th house is generally it is said toward the spouse, that person is not able to establish a strong relationship physically. Mental emotion की बात नहीं कर रहा, physically की बात कर रहा हूँ, because Surya being in the 7th house, 7th राशि belongs to Shukra, Venus being out there, right? नैसर्गिक कुंडली जिसको बोला जाता है, तो it kills that area. Venus is your in boy sperms, ovaries, in the females itself, तो उसको सूर्य वहां पे बहुत हाई एनर्जी रहता है, तो इसलिए उसको ज्यादा स्ट्रांग नहीं माना गया. सूर्य 7th हाउस के अंदर प्रॉब्लमेटिक एरिया में माना गया. सूर्य इन द 7th हाउस फॉर द स्पाउस इज नॉट दैट वेरी ग्रेट. ठीक है ना. हाँ, 7th हाउस हमारी पब्लिक लाइफ भी है, तो वहां पे व्यक्ति ज्यादा बैलेंस आउट नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस लो रहता है, सेल्फ एस्टीम व्यक्ति की लो रहती है. अगर चाहे वो सूर्य एक्सॉल्टेड भी हो 7th हाउस में, मतलब 7th हाउस में मेष राशि हो, देन ऑल्सो इट इज सेट अ फियरफुल नेचर रहता है व्यक्ति का, तब भी अथॉरिटी पूरी तरह नहीं रहती है. सूर्य इन द जोन राशि बट इन द 7th हाउस इज नॉट दैट वेरी ग्रेट. इट मे हैव अ प्रॉब्लम टुवर्ड्स द मैरिज ऑल्सो, इट्स नॉट दैट कंसीडर्ड वेरी ग्रेट. कहता है ब्रेक ऑफ मैरिज भी दे सकता है. आई हैव नॉट सीन इन मेजर एरियाज बट सीन द डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स द मैरिज बीइंग आउट देयर, राइट. तो वो डिससैटिस्फैक्शन 7th हाउस में बहुत ज्यादा देता है. जैसे ही वो 8th हाउस में आता है, 8th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑकल्ट नॉलेज, deep secretive areas, confidential information, major ups and downs, drastic changes being out there. आपके in-laws फैमिली जो होता है वो भी 8th हाउस होता है. For females, their in-laws is 8th house, for males their in-laws is 8th house. Right? तो आपके in-laws भी जो हैं वो भी अष्टम से देखे जाते हैं, 8th हाउस से देखा जाता है. तो अगर जब हम सूर्य को बोला गया, सूर्य 8th हाउस में ठीक ठाक रहता है, उसमें ये बोला गया उसको खाली एक ही व्यक्ति को, उस व्यक्ति को ईगो थोड़ी सी कंट्रोल करनी चाहिए, रिकॉग्नाइज अदर्स इन अ बेटर वे, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर दैट नेटिव, एल्स इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर दैट पर्सन, कि कहीं ना कहीं दिक्कत समस्या रह सकती है. उस व्यक्ति को नेम फेम जरूर मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं. अष्टम का है ना, तो हिडन चीज है, मतलब वो क्या आएगा, उसका नाम शोहरत में. सूर्य अष्टम के लिए बोला. Surya when in 9th house, Sun is your ego, esteem, vitality, father figure, authoritative. 9th house or 9th house is what? Your religion, your spirituality, teachers हो गया, legality हो गया, पिता का घर हो गया, long journeys हो गया. तो यहाँ पर जैसे सूर्य आता है तो सूर्य की जो ईगो है और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा स्ट्रांगनेस में आ जाता है. फादर के जो नेटिव उसकी जो टीचिंग्स होती हैं उस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं उस नेटिव के. मतलब फॉर एग्जांपल यू हैव अ सन 9th हाउस, सो इट इज सेड योर इन्फ्लुएंस ऑफ फादर लाइक फिगर विल बी वेरी हाई इन योर लाइफ. स्ट्रांगनेस रहता है. ठीक है ना. मतलब जो भी आपकी जैसे भी ये वो रहेगी, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द फादर्स टीचिंग्स बीइंग आउट देयर. 9th हाउस में सूर्य को बोल दिया गया कि ईगो को अगर कंट्रोल करेगा, इन व्यक्ति की ईगो तोड़नी बहुत मुश्किल होती है. अगर वो
ईगो तोड़ी भी जा सकती है, तो फादर लाइक फिगर, बिकॉज सूर्य इन द 9th हाउस, सूर्य इज फादर बीइंग आउट देयर, राइट। तो उसके वो बोला कि फादर ईगो है, तो उनके फादर लाइक फिगर को इनको सपोर्ट करके उनको थोड़ी सी टीचिंग क्या करनी चाहिए। वन ऑफ दोस पीपल्स ईगो विल बी वेरी वेरी हाई। सूर्य व्हेन गोज इन द 10th हाउस, अथॉरिटी आ गया, करियर आ गया। अगर हम लोग अपने आउटर वर्ल्ड के कर्म धर्म की बात करते हैं तो सूर्य को बोला गया, राइट। तो ब्राइट और हॉट जब सूर्य माना जाता है तो वो साउथ डायरेक्शन में माना जाता है। 10th हाउस इज द साउथ डायरेक्शन, सदर्न डायरेक्शन ऑफ योर इन द what do you call it, astro vastu, right? So यहाँ तो बोला व्यक्ति का गवर्नमेंट लाइक या एग्जीक्यूटिव पोजीशन स्ट्रांग बहुत रहता है। आई हैव आल्सो नोटिस वन थिंग, पीपल विद द 10th हाउस सूर्य हैव their income area generation from a very young time, बचपन से थोड़ा सा का उनका स्ट्रॉन्ग, पीपल आर वेरी वेरी इच्छुक हो, या उनको बोल सकते हो कि थोड़ा सा उनका मन रुझान बहुत ज्यादा रहता है अर्ली लाइफ में पैसे कमाने के लिए। इट इज कंसिडर्ड गुड, राइट। मतलब इट इज सीन कि वो व्यक्ति का गवर्नमेंट के साथ भी सीन हो सकता है इन देयर ओन प्रोफेशन, अदर प्लैनेट्स सीन टू दैट, और एज इट इज आल्सो सेड कि वो व्यक्ति का गवर्नमेंट के साथ भी काम हो सकता है। कोई प्राइवेट आदमी हो, जैसे निशा जी अगर आपको बोला जाता है सूर्य 10th हाउस है, तो इट्स नॉट रिलेटेड कि यू विल बी इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, it can also be said कि some if your work is being out there, you can do some government related work that will be okay for you, वो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, राइट। इनकम, सडन प्रोस्पेरिटी, सोशल, प्रोफेशनल नेटवर्किंग की बात करें, फ्रेंड्स की बात करा जाता है, सो इट इज कंसिडर्ड गुड बीइंग आउट देयर। कम्स इन हाउस, और वो ओरिजिनल अगर देखा जाए तो उसके लिए गेन्स का हाउस जो होता है, अगर सूर्य को देखा जाए इस व्यक्ति को, अगर इफ ही टेक्स द सपोर्ट ऑफ द फादर लाइक फिगर, नाउ द सपोर्ट ऑफ फादर लाइक फिगर, सन इज इन द 11th हाउस, योर इनकम गेन्स एनीथिंग कम द 11th हाउस, तो सपोर्ट फ्रॉम फादर लाइक फिगर इन फ्रॉम हाउस इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस फॉर दैट पर्सन। कि पिता का क्या बोलेंगे उसको, लेके द ब्लेसिंग of that person is very very important from the 11th house। wealth के लिए अच्छा बोला गया, it is considered auspicious in the 12th house। 12th house किस चीज का होता है, हॉस्पिटल का होता है, परमानेंट रेजिडेंसी का होता है, फॉरेन के लिए फॉरेन रिलेशनशिप होता है, सी साइड अक्रॉस होता है, असाइलम होता है, जेल होता है ना। तो ये 12th हाउस जैसे यहाँ पर आता है तो उसके लिए सूर्य इज नॉट कंसिडर्ड वेरी वेरी ऑस्पिशियस। आई टोल्ड यू सन इज जस्ट इन 2 हाउसेस, इज नॉट दैट वेरी वेरी ग्रेट, इन द फर्स्ट इन द 7th हाउस एंड द 12th हाउस। तो सूर्य जैसे 12th हाउस में आता है वो फिर प्रॉब्लमेटिक एरिया देता है। ये बोला जाता है कि अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा घर से दूर रहे, घर से बाहर रहे, towards a foreign land, or suppose somebody is in south coming to the north, somebody from the north going to the south or the east, that will be considered well for that person। उसके लिए वो जगह ठीक ठाक कंसिडर करी जा सकती है, राइट। एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ फॉर सूर्य? सर कैन यू प्लीज रिपीट फॉर 11th हाउस सर, वो वॉइस आपकी लैग हो गई थी बीच में सर। कौन सी वाले का? 11th हाउस सर। 11th हाउस मैंने बोला स्ट्रांग होता है कि ही कैन टेक द व्हाट डू यू कॉल इज सपोर्ट फ्रॉम द फादर लाइक फिगर, इट इज कंसिडर्ड गुड। अच्छा, ये मैंने बड़ा बेसिक्स बताया है, इसके साथ भी राशि वाशि जब कांटेक्ट करेंगे तो दैट इज डिफरेंट, अदर प्लैनेट्स कमिंग अप इज वेरी वेरी डिफरेंट, राइट। व्हाट आर द क्वेश्चंस? सूर्य को बोला गया, राइट डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवरीबॉडी हैज टू वर्क अपॉन दैट, wherever your sun is। okay, अभी तक क्या बेसिकली आप लोगों को जितना आइडिया है उतना समझिएगा इस चीज को। wherever your sun is in your horoscope nisha, the sun can be in any house from 1st to 12th house, anywhere, right? wherever your sun is, it activates that house in the 32nd running year। write it down, wherever your sun is, it activates the house in the 32nd running year। for an example, somebody's sun in the 6th house, 32nd रनिंग ईयर की बात कर रहा हूँ, 31 साल हो गए, 32वां चल रहा है, इन हिंदी इसको बोला गया था 32nd रनिंग ईयर। दैट पर्सन
कैन विन ओवर द आर्गुमेंट एरिया। तो अगर उस व्यक्ति को कोई केस कचेरी चल रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव एट्रीब्यूट बोला गया। इफ सपोजिबली दैट सन इज इन द 4th हाउस, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम गेन्स फ्रॉम द हाउस होल्ड एरियाज, कि कुछ ना कुछ उसको सपोर्टिव मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हेल्प आउट मिल जाएगा। वेयर एवर योर सूर्य सन इज, it gets activated in the 32nd year of your horoscope। एग्जाम्पल लो, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा फॉर एवरीबॉडी। मेक अप योर हॉरोस्कोप्स। आई एम अज्यूमिंग एवरीबॉडी इज 32 प्लस इन योर क्लास, राइट? कनेक्ट के 32nd ईयर में आपका सूर्य कहाँ पे है और क्या इवेंट आपकी लाइफ में हुआ, मोटा मोटा, वेरी अप्रॉक्स, क्या इवेंट आपकी लाइफ में हुआ, एंड देन थिंक ओवर इट के। और पहले सन देख लो कहाँ पर है, पहले सन देखो, फिर अपने इवेंट लिखो, 32nd रनिंग ईयर में आपके इवेंट क्या हुआ, एंड देन try to jot it down कि how is it connecting with the sun which is in the same house or not। I'll give you an example of my side। 32nd year, my sun is in the 5th house। 5th house is again new opportunities also। 5th house is fall from position also। So I had a very major breakdown in one of the businesses, fall from position, which I had to typically resign or leave that business immediately। I had to quit that position, but immediately I got a new opportunity also in a factory। I had opened up a factory। So 5th हाउस मेरा वो क्यों उसके साथ हुआ, जो दूसरा प्लैनेट भी है वहां पर इस चक्कर में। बट टिपिकली अंडरस्टैंडिंग इज न्यू अपॉर्चुनिटी। आई रिमेंबर आई टोल्ड यू 5th हाउस इज न्यू अपॉर्चुनिटी, 5th हाउस फॉर पोजीशन, तो उसको वैसे देखना शुरू करना। 5th हाउस किसी का होगा तो ऐसा भी बोल सकते हो कि आप फीमेल मतलब सपोज शी इज प्लानिंग तो 32nd ईयर इफ द सूर्य इज इन द 5th हाउस, ऐसे नहीं, तो देयर आर चांसेस दैट फीमेल कैन कंसीव आल्सो। अंडरस्टैंड, राइट? तो इसलिए बोल रहा हूं, इट्स ऑन अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। आई हैव जस्ट टोल्ड यू वन BSP, ट्राई टू कनेक्ट इट wherever your sun is get activated in the house। I'm not talking about any राशि right now, nothing। बस खाली हाउस के साथ एट्रीब्यूट एक बार देखिएगा, आपको समझ आएगा। Any questions? सन को क्या पसंद नहीं है सूर्य को? So suppose if you should not break laws, go with rules and regulations, go with protocols, don't insult your father, don't father like figure, authority बंदे का। हमेशा एक और चीज बोला गया, sex towards the daytime is also considered a negative sun being out there। Don't bring issues in the 7th house matter where sun goes debilitated। तो अपने spouse के साथ जो egos रखते हैं, that also spoils your sun। अपने father like figure के साथ बदतमीजी, that spoils your sun। Rules regulations, Surya is what the brigadier। Rules and regulation, if you are breaking rules regulations, so that is your spoiling your Surya। Anywhere in your horoscope, I'm not talking about in the first house, anywhere in your horoscope, it will give you a problematic। Any questions related to Surya sun? Please ask। सबको समझ आ गया है? मेरी आवाज नहीं आ रही, आ तो रही है, ठीक है। Any questions, guys? सबको समझ आ गया? इंटेलिजेंट, वेरी। आई एम नॉट टेकिंग मून टुडे। मैं मून अभी नहीं लूंगा, मेरे पता नहीं आइस बहुत ज्यादा वाटरी हो रही है, तो इस चक्कर में मून नहीं बढ़ा है। मैं एक आई जस्ट टेक अ पॉज टुडे। आई एम सो सॉरी, मेरी थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, मैं उससे आगे नहीं जा रहा। कोई पास्ट क्लास का क्वेश्चन है तो उससे पूछ लो, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में बंद कर दूंगा। मेरी आइस में बार बार चश्मा पहनो तो मेरी आइस थोड़ी सी दर्द हो रही है। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ। सर आपने कहा सन 32nd ईयर में एक्टिवेट होता है सर, सो ओनली दैट पर्टिकुलर 1 ईयर आफ्टर 32 years it starts activating। Activation happens, activation is activated after the age of 12, that's not a problem। बट एक होता है ना, कई व्यक्ति एक प्लैनेट को ना तो हाईली इन्फ्लुएंस करता है। एक टाइम होता है ना, अपना टाइम आएगा, that so that is Surya's 32nd year being out there anywhere in the horoscope will give you activation that ways। जैसे मैंने बोला, सन इज कनेक्टेड टू फादर, मून इज कनेक्टेड टू मदर, ठीक है ना। सन के लिए मैंने भगवान बोले थे श्री राम, मून के लिए है कृष्ण जी, राइट। सन एक बोला गया ईगो के लिए, मून बोला गया आपके मेंटल एरियाज के लिए। हाउ इज मून वेयर एवर, मून का एक बड़ा स्ट्रॉन्गनेस बोला गया। मून जहां पर भी होता है ना, डुअल शिप देता है आपके हॉरोस्कोप के। मून जब लग्न में होता है तो मल्टीपल एरिया मूड स्विंग्स की बात करते हैं ना, मेरा मन नहीं कर रहा, हो नहीं रहा है,
that kind of area. कर्क लगना people, moon लगना, whatsoever, vice versa. तो mood swings बहुत ज़्यादा देता है. Moon, understand moon. Story सुनाता हूँ, but then we'll pause. अगर मेरे पे हुआ मैं continue कर लूँगा, तो बात नहीं है. चंद्र की कितनी रानियाँ थी? How many queens did moon have? 27. All the nakshatras are connected to Chandra. Right? तो चंद्र थोड़ा उसमें बायस था, रोहिणी की तरफ पे था, वो सब था, एक अलग था. What happened? Chandraban went out of the marriage, had an elect relationship with a 20th female. तारा गुरु बृहस्पति की वाइफ, और उनसे उनका एक बच्चा हुआ, संतान हुई, इसको बोलते हैं बुध मरकरी. तो एक अलग स्टोरी निकल के आती है. तो प्रजापति दक्ष गॉट वेरी वेरी एंग्री अंडरस्टैंडिंग दिस एट्रीब्यूट. तो उन्होंने चंद्र को एक श्राप दिया. वो श्राप क्या था कि तुम मर जाओगे, you will die because you are a cheater, you have cheated my 27 daughters, you will die. So it started happening. तो इनको प्रॉब्लम आने शुरू हुआ. तो उनकी वाइफ्स ने सबने महादेव को अप्रोच किया. एवरीबॉडी डिड दैट एंड महादेव जस्ट गेव हिम अ boon. He said, I cannot reverse it, but I can do just one thing is 15 days you will rise and shine, in 15 days you will be a zero, you will be dying. So that अमावस्या पूर्णिमा कंसेप्ट को स्टोरी जो दिया वो ये स्टोरी दिया गया. तो मून को क्या बोला गया? मून इज नेवर सेटिस्फाइड. मून की प्यास कभी नहीं बुझती. मून इज कनेक्टेड विद वाटर. चंद्र इज पानी. जितने भी कभी मेरे से कोई क्लाइंट भी बात करते हैं, मैं हमेशा एक ही समझाता हूँ कि वेयर एवर योर मून इज, यू आर नेवर सेटिस्फाइड विद दैट एरिया. मून वेयर एवर इट इज, आपको एक बार रुलाएगा जरूर उस चीज के लिए. 7th house moon. I'm not saying it is a breakage in marriage, but that person will always have dissatisfaction towards the marriage. शायद कुछ betterment हो सकता था, शायद और मैं कुछ और कर सकता था. Moon in 10th house, that person always seeks for multiple professions. Multiple है ना, जिसको comfort तो है नहीं. 10th house क्या profession है ना? You remember 10th house profession, right? और अच्छा कर सकता था यार, और शायद मैं अगर और hunt up करता तो मैं शायद किसी और अच्छे profession में चले जाता, या मैं कुछ और अच्छा कर लेता. Moon, wherever it is, never gives you satisfaction. Moon 11th house, multiple income gains coming out from there. Mother-like figure से help and support मिलता है. That is separate. तो Moon कभी भी contentment में नहीं है. Moon is what? Moon को किसने कंट्रोल किया था? Moon is just controlled by महादेव. तो इसलिए क्या बोला गया? मंडे को किसकी पूजा करनी चाहिए? शिवलिंग. तो that understand the logic being out there. So now suppose if you are giving water to शिवलिंगम, मिल्क टू शिवलिंगम, फॉर रिलेशनशिप हमेशा बोला जाता है शहद चढ़ाओ, एक अच्छा शिवलिंग के लिए माना गया. सो इसलिए महादेव की पूजा को बहुत महत्व दिया गया चंद्र को कंट्रोल करने के लिए. चंद्रशेखर इज द वर्ड टू महादेव. if you people know about it, because he had that Narayan Vishnu ji gave him that name Chandrasekhar. So moon, whenever you have to happen, is what you have to pray to Mahadev typically, because he is controlling that moon. Whenever that moon instability is being out there, जब भी मून की इंस्टेबिलिटी होती है तो क्या बोला गया साइंटिफिक में? देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल, जो यहाँ पे तो स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं उसको, कॉर्टिसोल, राइट? वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, मतलब वो उसको बोला गया उसके लेवल थोड़े से हाई चले जाते हैं. साइंटिफिकली जो बोला जाता है डॉक्टर लैंग्वेज में, योर कॉर्टिसोल लेवल्स आर हाई मींस यू आर वेरी मच इनटू द एंजाइटी एरिया. आप लोगों को बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है तो कॉर्टिसोल पे लगा रहता है. तो व्हेनेवर योर मून इज वीक, तो मून इज एट अ प्रॉब्लम. व्हेन इज मून वीक? Moon is weak when it's in Vrishchik Rashi. Vrishchik means Scorpio Rashi. When in 6th, 8th, 12th house, Moon is very, very weak. Whenever Moon is with Rahu, Ketu, Moon is very, very weak. Moon is a planet which is the fastest moving planet. Whenever Moon किस क्या बोला गया? मैंने एक ट्रांजिट समझाया था अभी. Moon एक राशि दूसरी राशि कितने में जाता है? 2.5 days में जाता है. बाकी सारे कितने कुछ आते हैं. इसलिए बोला गया मून और शनि जब भी कुंडली में होते हैं, ज्योतिष में तो विष योग बोला गया. डोंट कंसीडर विष एज अ पाउजन टिपिकली. तो बोला गया वो व्यक्ति कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में बहुत ज्यादा रहता है. wherever moon and Saturn are together in your horoscope, it doesn't allow you to have a very very strong attribute. वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा रहता है साथ में. वो इतना कंफ्यूज में रहता है कि कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा. अच्छा यार अगर शॉपिंग करने जाए, सपोजिवली I have a Chandra, I don't have, generally understand, I have a Chandra and moon in my horoscope somewhere, so the confusion state of mind increases. Why? Because एक क्या है, एक फरारी है, moon is Ferrari, it is running in 2.5 days, and वो दूसरा वो बैलगाड़ी है, वो 2.5 years में कर रहा था. जो चंद्र 2.5 दिन में कर रहा है वो 2.5 साल में कर रहा है शनि.
that is the speed whenever together they are collapsing to each other. That person will be slow, that person's decision making will be very very slow. Chandra is your mind, he will be confused state of mind, right? Got my point? चंद्र किसी भी प्लैनेट के साथ आता है तो कहीं ना कहीं उसका एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा रहता है, मानसिक एरिया चंद्र बुध होता है. बुध इज व्हाट योर कम्युनिकेशन. हम जब वाणी की बात करते हैं कम्युनिकेशन बोला गया, तो वो व्यक्ति कभी ना कभी ऐसी कोई बात जरूर बोलेगा लाइफ में जहां पर उसको गाली जरूर पड़ेगी. ही वुड बी ऑलवेज बी, उसे क्या बोलते हैं, डिसरिस्पेक्टेड वंस बिकॉज ऑफ इट्स ओन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स. कहना कुछ चाहता है, बोलता कुछ है, तीसरा बंदा समझता कुछ है. दैट इज चंद्र बुध. तो ऐसी मरकरी मून का कभी भी चंद्र राहु जब होता है तो राहु अगेन, राहु गिव्स यू व्हाट, वो ग्रहण बोलते हैं ना, एक्लिप्स इस राहु भी कर. चंद्र राहु जब होता है तो वो व्यक्ति इल्यूजन बहुत ज्यादा अपने जबरदस्ती ओवरथिंकिंग इल्यूजन ही चलता है. चंद्र केतु होता है, स्ट्रेस लेता है हमेशा. तो मून इज लाइक दैट इटसेल्फ. तो चंद्र टिपिकली यू कैन अंडरस्टैंड इज योर मदर लाइक फिगर आल्सो फॉर दैट. चंद्र हमारा, जब भी हम बात करते हैं तो पानी के कनेक्शन जब हम बात करते हैं तो चंद्र की बात करते हैं. वाटर के लिए जब हम बोलेंगे तो मून सबसे ज्यादा एट्रीब्यूटिवली बात करा जाता है. हमारे डोमेस्टिक लाइफ, हमारे मूड स्विंग्स, हमारी रेपुटेशन, हमारे इमोशंस, हमारा ईटिंग स्टाइल, हमारा ट्रैवल, these all are connected with whom? These all are connected with Chandra out there. चंद्र दूसरे राशि की बात नहीं करूंगा, अभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कहता अभी मैं इतना कंट्रोल करता हूँ. तो आप जब भी पानी रिलेटेड कुछ भी बात करते हैं तो चंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट आता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला गया चंद्र को कंट्रोल करने के लिए? महादेव की पूजा इज कंसिडर्ड गुड फॉर दैट मैटर्स, राइट. चंद्र के लिए अगर मैं टिपिकली बोलूं कि एक पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो बोला गया, तो हमेशा बोला गया कि कीकर का पेड़ होता है, कीकर का पेड़ नॉर्थ में ज्यादा मिलता है, टुवर्ड साउथ इज नॉट आउट देयर. तो इसमें बोला गया फिर हरियाली में रेगुलरली पानी दे दीजिएगा, रात को पानी रखा और सुबह पानी को दे देंगे. दैट आल्सो कीप्स योर मून एट अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट. कीपिंग सिल्वर विद यू, फीमेल स्पेशली यू सी मेनी फीमेल्स कीप सिल्वर, कुछ ना कुछ छोटा चल रहा है, कुछ ना कुछ रखती है स्क्वायर सिल्वर पे. So keeping that silver also keeps your moon very very positive. Supposedly you see somebody having a negative moon, negative वाली बात करेंगे और समझाऊंगा इसके बारे में, अभी तो नहीं बोल रहा ज्यादा. So that silver attribute being out there will be very very helpful for that person. चंद्र को टिपिकली अगर मैंने जितना अपने इसमें देखा, वाटर रिलेटेड एट्रीब्यूट जितनी बारी को भी देखा जाए तो चंद्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पानी का इंटेक, cortisol is what when you want to neutralize your cortisol level, what you need to do is drink a lot of water. उसको cortisol को अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए. शास्त्र क्या बोलता है? पानी. क्या बोला? पानी. हमारे में क्या बोला गया? पानी चढ़ा दो, या पानी का सेवन या पानी का पास अपना ज्यादा रखो. तो योर वाटर लेवल हैज टू बी गुड फॉर दैट मैटर. दैट्स द ओनली रीजन फॉर द मून बीइंग आउट देयर. सी एवरी प्लैनेट हैज इट्स ओन रेमेडी इन आवर शास्त्र्स. वी डोंट फॉलो दैट. हम लोगों को लगता है मंत्र करने से ही सब कुछ होता है. चंद्र को जब अर्घ भी देते हो, अर्घ इज व्हाट यू गिव वाटर इन द इवनिंग इटसेल्फ, राइट. दैट इज आल्सो कंसीडर्ड वेरी वेरी ऑस्पिशियस टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड मून. To have the moon balanced, the only remedy which I've seen is always works for everybody is meditation. Try to control your monkey. Easy रखो उसको, कि मूड स्विंग है ना, कुछ ना कुछ चलेगा, भगाएगा कुछ ना कुछ, मूड स्विंग्स रहेगा. चंद्र those people and you will meet many with them regularly. के सर अमावस्या पूर्णिमा के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम रहता है. We feel that turmoil happening in our life, up and down and everything. Why? Moon is the weakest when towards Amavasya. I just told you the story, moon dying है वो वाला जो मैं बता रहा था. When is moon very very strong in Purnima, so people with a weak moon cannot handle those energies. When it is very very zero, then also it is a problem. When it is at high level Purnima, then also it's a problem. Purnima पे tides कैसी होती हैं? High. Amavasya no tides being out there, zero. वो handle नहीं कर पाते. तो people with weak moon have those problems. तो इसलिए बोला गया चंद्र की पूजा, महादेव की पूजा बहुत ज्यादा. और यू विल फाइंड इन योर प्रोफेशनल लाइफ आल्सो मून वीकनेस इज वेरी वेरी कॉमन. आपको मैक्सिमम लोगों को मूड स्विंग एरिया. आज क्या हुआ, टुडे ओनली आई वाज कनेक्टिंग टू समबडी एंड दैट पर्सन हैड अ वेरी वीक मून फॉर दैट मैटर्स. तो चंद्र कर्क का था उनका, चंद्र कर्क का था उनका. तो उस लेडी को प्रॉब्लम ही यही थी कि सर मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूं तो क्या ना करूं. और अच्छा सा कॉम्बिनेशन था उनका कि इट वाज लाइक के कहा यस कर्क लगना
moon in the lagna itself. That was the combination for that person, right? तो वो लेडी को कभी मतलब मैंने कहा कहती सर मैं ना समझ नहीं आता, मेरी सास वैसा वैसा सब कुछ, she told me everything. But at last when I said, मैंने कहा how are your mood swings सर, मुझे समझ ही नहीं आता सर मैं क्या हो जाता और क्या नहीं हो जाता. मैंने कहा सास ने बोला होगा तू ना खाना ठीक नहीं बनाया और तेरे को लगता होगा सास ने मेरे को टोंक मार दिया, you overthink a lot. Yes sir, exactly. चंद्र is what Chandra will never give you a strong headedness. वो इधर से उधर से इधर भगाता रहेगा. छोटा बच्चा कैसे होता है ना, भागता है. चंद्र मैं कह रहा हूं एक जो चीज लोग एक महीने में कर रहे हैं चंद्र वो 2.5 दिन में कर रहे हैं. भाई चंद्र के बाद जो फास्टेस्ट है वो मरकरी बोला गया, 27 दिन का बोला गया. वो जो उससे कितने 10 टाइम्स एक्स्ट्रा टाइम फास्ट टाइम कर रहा है चंद्र, जो शनि 30 साल में करता है चंद्र वो 27 दिन में करता है. दैट इज दैट स्पीड बीइंग आउट देयर. सो अंडरस्टैंड. तो यही चंद्र के लिए मेजरली एट्रीब्यूट्स है. विल टॉक अबाउट चंद्र अगेन, दैट रेडनेस कमिंग आउट इन द आई. विल टॉक अबाउट चंद्र लेटर अपॉन. एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ विल टेक अप नेक्स्ट टाइम. चंद्र के हाउसेस और राशि से शुरू करेंगे. एनी क्वेश्चंस? इंटेलिजेंट पीपल काइंडली स्पीक अप. या तो समझ नहीं आया, बहुत समझ आ गया. अच्छा, I can judge you because you are listening, and then the rest nobody is, the cameras are on. That's the reason I'm asking everybody. Guys, please unmute and ask me, or else I'll pause the class right now. It's not an issue with me. Chalo. ठीक है. I'll take a pause for today. Sorry because I don't know what's happening. Eye drops. I'll take a rest for a while. All right. ठीक है जी. We are meeting next Thursday then. God bless you. अंकित जी ओके, समझ आ गया सब कुछ? चलो डन है. ठीक है. सर आ गया. बाय. ठीक है. हाँ जी.